آج ہم نے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 سے پڑھنا ہے۔ اس آیت نمبر 185 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شہر مہینہ ہے رمضان کا، رمضان کا وہ مہینہ ہے الذی وہ جو انزلہ نازل کیا گیا فیہ اس کے اندر القرآن قرآن۔ اللہ فرما رہا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ جس کے اندر قرآن پاک نازل کیا گیا، ہدی للناس اس کے اندر ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی اور روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی، واضح نشانیاں ہیں، روشن باتیں ہیں، من الہدی ہدایت کی، والفرقان اور فیصلے کی۔ فمن شاہد منکم فمن پس جو شاہدہ پائے منکم تم میں سے الشہر اس مہینے کو فلیصمہ تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر ومن کان اور جو ہو مریض او علی سفر یا سفر پر ہو فعدۃ من ایام اخر فعدۃ تو اتنے دن من ایام اخر دوسرے ایام سے، تو اتنے دن دوسرے ایام سے وہ روزے رکھے۔ فعدۃ من ایام اخر تو اتنے دن دوسرے ایام سے روزے رکھے۔ یرید اللہ بکم اليسر اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید اور وہ نہیں چاہتا بکم تمہارے لیے العسر تنگی، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ ولتکملوا العدۃ ولتکملوا اور چاہے کہ مکمل کرو، پورا کرو، العدۃ گنتی کے دن، ولتکبروا اللہ اور چاہیے کہ تم بڑائی بولو، پاکیزگی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، علی ما ہداکم اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، ولعلکم تشکرون اور اس امید پر تاکہ تم کہیں شکر گزار بنو، کہیں تم حق گزار بنو۔ اب اس آیت کے اندر ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کا بیان ہے، اور اس کی دو اہم ترین فضیلتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا، رمضان کا مہینہ ایک فضیلت اس کی یہ کہ اس مہینے کے اندر قرآن اترا، اور دوسری اس کی فضیلت یہ کہ یہ مہینہ جو ہے روزوں کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس مہینے کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو روزوں کے لیے منتخب کیا۔ اب رمضان کی فضیلت اس سے ثابت ہو رہی ہے، اور رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیا ہے، اور قرآن مجید کی نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت ملی، ماہ رمضان کو شرافت ملی۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف اور عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے، یعنی جس وقت کو عظمت یا شرف والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ قیامت تک شرف والا ہے، اور جس دن اور گھڑی کو حضور علیہ السلام کی ولادت سے نسبت ہو جائے، حضور علیہ السلام کے معراج سے نسبت ہو جائے، وہ عظمت اور شرافت والے ہو گئے۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام کی جو پیدائش کا دن ہے وہ جمعے کا دن تھا، تو جمعے کا دن عظمت والا دن بن گیا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر قرآن میں سلام فرمایا گیا ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر سلام فرمانا قرآن کے اندر مذکور ہے۔ اللہ جو فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ اب کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے، لیکن اگر رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اگر بالکل طاقت نہیں ہے تو فدیہ دے دو، اگر کوئی عارضی وجہ ہے، بیمار ہو گئے ہیں، مسافر ہے، یا اس طرح کی کوئی وجہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اتنے دن رمضان گزر جانے کے بعد اتنے دن پورے کر لو۔ اب اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں 11 مہینے کھانے پینے کے لیے دیے ہیں، صرف ایک مہینہ دیا ہے کہ دن کو آپ نے کچھ نہیں کھانا پینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسانی ہے۔ اب دیکھیں چند جانوروں کا گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، لیکن دیکھا جائے تو ہزاروں جانور ایسے ہیں، پرندے ایسے جن کا گوشت حلال کیا ہے۔ اب اس طرح کاروبار کو دیکھ لیں، چند ایک طریقے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے، جن سے منع کیا ہے، لیکن ہزاروں طریقوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح مرد کو ریشمی کپڑے سے منع کیا، لیکن کئی طرح کے کپڑے جو ہیں پہننے کی اجازت دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کی ہے،
अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों पर, उम्मतियों पर, हजूर के उम्मतियों पर, अपने बंदों पर अल्लाह तबारक व तआला ने आसानी फरमाई है। और इसके बाद आखिर में अल्लाह फरमाता है और ताकि तुम गिनती के दिन पूरे करो, वाले तुकमिलो इद्दता, ताकि तुम गिनती के दिन जो है पूरे करो। गिनती के दिन पूरे करने से मुराद रमजान के 29 या 30 दिन, यानी 29 का है अगर रमजान का महीना तो 29 रोजे रखें, और 30 का है तो 30 रोजे रखें। अब इसे जो अगली आयत है, आयत नंबर 186, इस आयत नंबर 186 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, व इज़ा और जब सअलका तुझसे सवाल करें, आपसे सवाल करें, इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, फइन्नी पस बेशक मैं, करीब करीब हूं। और जब ए महबूब जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं नजदीक हूं, मैं करीब हूं। उजीबु दावत दाए इज़ा दान, मैं पुकारने वाले की पुकार पूरी करता हूं, मैं दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब मुझे पुकारे। फल यस्तजीबू ली, फल यस्तजीबू ली, और चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने। वल युमिनू बी, और चाहिए कि वो मुझ पर ईमान ले आए। लअल्लहुम यरशुदून, इस उम्मीद पर ताकि वो राशिद बने, हिदायत याफ्ता बने, ताकि वो राह पर आए। अब इस आयत का जो शान नज़ूल ये है कि कुछ सहाबा कराम ने जज्बा इसके इलाही में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ्त किया कि हमारा रब अज़्ज़ा वजल कहाँ है। तो उस पर बताया गया कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो मकान से पाक है, क्योंकि जो चीज किसी से मकान के एतबार से कुर्ब रखती हो वो उसके दूर वाले से जरूर दूर पड़ती है। और अल्लाह ताला जो है वो सब बंदों से करीब है। आगे अल्लाह फरमाता है कि मैं दुआ मांगने वाले की दुआ जो है वो पूरी करता हूँ। जब वो मुझे दुआ करता है तो मैं उसकी जो पुकार है वो उसकी पूरी करता हूँ। जब वो अपनी हाजत तलब करने के लिए मेरी बारगाह के अंदर है, मेरे आगे हाथ उठाता है, तो मैं उसकी जो पुकार है उसको पूरी करता हूँ। जब भी बंदा हाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला कि हाँ अल्लाह के दरबार में आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जो दुआ है उसको पूरा फरमाता है। ठीक है, अब बात यह है कि बस बाज़ औक़ात बंदा दुआ मांगता है, दुआ पूरी नहीं होती। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला या तो दुआ फौरी तौर पर पूरी फरमा देता है, बंदा दुआ करता है अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा देता है, या अल्लाह तबारक व तआला फौरी तौर पर कबूल नहीं करवाता लेकिन कुछ वक्त लग जाता है। बंदा दुआ करता रहता है अल्लाह तबारक व तआला से, लेकिन 1 महीना 2 महीने 6 महीने साल कुछ अरसा गुजरता है, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उसकी जो दुआ है वो कबूल फरमा लेता है। या बंदा दुआ करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे वो चीज अता नहीं करता, लेकिन उसके बदले में उसकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं फरमाता, लेकिन उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला बंदे को वो चीज अता फरमा देता है जो बंदे के हक में बेहतर होती है। तो इसका मतलब है कि दुआ हमें हर हाल में मांगनी चाहिए। दुआ के लिए कोई कैद नहीं है कि आप सुबह को मांगे, शाम को मांगे, उठकर मांगे, बैठकर मांगे, जिस तरह मांगे, जिस वक्त मांगे, किसी किस्म की कोई कैद नहीं है। जब मांगनी हमने अल्लाह तबारक व तआला से है तो किसी किस्म की इसके साथ कोई कैद नहीं है। अब इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 187, इस आयत नंबर 187 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है वहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम, वहिल्ला लकुम हलाल किया गया तुम्हारे लिए, लैलतस सियाम रमजान की रातों में, अर्रफसु जाना, इला निसाइकुम तुम्हारी औरतों की तरफ। रमजान की रातों में, रोजे की रातों में तुम्हारा अपनी बीवियों की तरफ जाना अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल कर दिया है। हुन्ना लिबासुल लकुम, हुन्ना वो लिबासुल लकुम तुम्हारा लिबास है, व अंतुम और तुम लिबासुल लहुन्ना और तुम उनका लिबास हो। आलिम अल्लाह जान लिया अल्लाह ताला ने, अन्नकुम बेशक तुम, कुंतुम तुम तख्ता नूना ख्यानत में डालते थे, अनफुसकुम अपनी जानों को, फताबा अलैकुम तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमाई, व आफा अनकुम और तुम्हें माफ फरमाया, फल आन बाशिरूहुन्ना बस अब उनसे सोबत करो, वब्तगू और तलाश करो तलब करो, मा कतबल्लाहु लकुम जो लिखा अल्लाह ने तुम्हारे लिए, वकुलू और खाओ, वशरबू और पियो, हत्ता यहाँ तक के यतबय्यना
खूब ज़ाहिर हो जाए, वाज़ेह हो जाए, लकुम तुम्हारे लिए, खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद, सफेदी सियाही से, मिनल फजरी पाव फूटे, यानी सफेद डोरा सियाह डोरे से बिल्कुल अलग हो जाए फजर फूटने से पहले। सुम्मा फिर अतिम्मु मुकम्मल करो अस्सियाम रोजे को इलल लैल रात तक, सुम्मा अतिम्मु सियाम फिर मुकम्मल करे रोजे को इलल लैल रात तक, वला तुबाशिरूहुन्ना और ना वाशरत करो, ना करीब जाओ औरतों के अपनी बीवियों के, वान तुम आकिफून और जब तुम ठहरे हुए हो, फिल मसाजिद मस्जिद के अंदर, जब तुम मस्जिदों के अंदर इत्तिकाफ में ठहरे हुए हो तो अपनी बीवियों के करीब ना जाओ। तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला की हदें हैं, फला तक़रबूहा तो इनके करीब मत जाओ। कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनुल्लाह बयान फरमाता है अल्लाह, आयाती ही अपनी आयातें, अपनी निशानियां, लिन्नास लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तकून ताकि वो इस उम्मीद पर के ताकि उन्हें परहेजगारी मिले। अब इस आयत के अंदर रमजान में रोजे की रातों में बीवियों के पास जाने की इजाजत का बयान है। अब इसका जो शान नुज़ूल है वो ये है कि शुरू में जब इस्लाम के इब्तिदाई दिन थे, इब्तिदाई इस्लाम के अंदर अफ्तार के बाद खाना पीना, जिमा करना, नमाज इशा तक सिर्फ हलाल था, नमाज इशा तक सिर्फ हलाल था। नमाज इशा का वक्त शुरू होने के बाद ये सब चीजें हराम हो जाती थी, यूं ही सोने के बाद ये सारी चीजें हराम हो जाती थी। अगरचे अभी इशा का वक्त शुरू नहीं हुआ, मगरिब के बाद जैसे कि खाना भी हलाल हुआ, पीना भी हलाल हुआ, बीवी से सोबत करना, जिमा करना भी हलाल हुआ। और मगरिब के बाद अगर बंदा कोई सो गया है तो फिर उसके बाद सारा कुछ उस पर हराम। इसी तरह इशा का वक्त शुरू हो गया तब भी हराम, अगर बंदा इशा के वक्त से पहले सो गया है तो तब भी हराम। बाद साहबे कराम से रमजान की रातों में हम बिस्तरी का फेल सरसद हुआ, इस पर वो हजरात नादिम हुए और बारगाह रिसालत में सूरत हाल अर्ज की तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमा दी कि तुम्हारे लिए रोजों की रातों बीवियों की तरफ जाना हलाल है। और अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह को मालूम है कि तुम अपनी जानों को खयानत में डालते रहो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें माफ फरमा दिया। अब खयानत क्या थी? खयानत से मुराद वो अज़वाजी ताल्लुकात हैं जो इजाजत से पहले रमजान की रातों में मुसलमानों से सरहद हुए, यानी रमजान की रातों में बीवियों की तरफ जाना जायज नहीं था, इजाजत नहीं थी, लेकिन उनसे ये मामला सरहद हो गया कि वो अपनी बीवियों की तरफ चले गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने से फरमाया कि तुम जो अपनी जानों को खयानत में डालते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें माफ फरमा दिया है और आइंदा के लिए तुम्हें इजाजत दे दी गई है। और इसके बाद अल्लाह फरमाता है वकुलू वशरबू, और खाओ और पियो। अब ये आयत जो इस आयत के जो अल्फाज हैं ये आयत हजरत सरमा बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में नाज़िल हुई। आप जो हैं एक मेहनती आदमी थे, एक दिन रोजे की हालत में दिन भर अपनी जमीन में काम करके शाम को घर आए, बीवी से खाना मांगा, वो पकाने में मसरूफ हो गई और ये थके हुए थे, अचानक उनकी आंख लग गई। जब बीवी ने खाना तैयार करके उन्हें बेदार किया तो उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस जमाने में ये था कि मगरिब के बाद चाहे इशा से पहले अगर बंदा सो जाए तो सो जाने के बाद रोजेदार पर खाना पीना ममनू हो जाता था। मगरिब के बाद खाना पीना जिमा वगैरह हलाल था, जायज था, लेकिन इशा तक। लेकिन अगर कोई इशा से पहले सो गया तो उसके बाद फिर मना है। तो उसने जब बीवी खाना लेके आई तो उसने मना कर दिया, ठीक है। इसी हालत में उन्होंने फिर दूसरा रोजा रख लिया, जिससे कमजोरी जो है इंतहा को पहुंच गई और दोपहर के वक्त आप बेहोश हो गए। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनका हाल बयान किया गया तो उनके बारे में ये आयत नाज़िल हुई कि तुम अब पूरी रात खा पी सकते हो और रमजान की रात में सुबह तक, सुबह सफेदी फूटने से पहले तक, पाँव फूटने से पहले तक। और यहाँ सुबह सादिक को सफेद दौरे से तशबीह दी गई। रवानी ये है कि तुम्हारे लिए खाना पीना रमजान की रातों में मगरिब से सुबह सादिक तक जायज करार दिया गया है। और ये जो था विसाल के रोजे, यानी बगैर इफ्तार किए अगले रोजे रख लेना और यूं मुसलसल रोजे रखना सोमे विसाल कहलाता है और ये ममनू है। और ये इजाजत सिर्फ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को थी। सही बुखारी के अंदर हदीस पाक है, तब हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने सहाबा कराम को सोमे विसाल के रोजे रखने से मना फरमाया। तो आगे उन्होंने अर्ज की कि आप तो विसाल के रोजे रखते हैं, इरशाद फरमाया तुम में मेरे जैसा कौन है, मुझे तो मेरा रब खिलाता है, मुझे तो मेरा रब पिलाता है। और आखिर में इस बात का मना किया गया है कि रमजान की रातों में रोजेदार के लिए बीवी से हम बिस्तरी हलाल है, जबकि वो मोतकिफ ना हो, जब वो इत्तिकाफ के अंदर ना हो। लेकिन इत्तिकाफ में अपनी बीवी से ताल्लुकात रखना जो है वो जायज नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान के आखिरी अशरे में, आखिरी 10 रातों में इत्तिकाफ
बैठा करते थे। और इत्तिकाफ की जो है बहुत ही फजीलत है। शोबुल ईमान के अंदर है, तलीयुल मुर्तजा शेर खुदा से रिवायत है कि सैयदुल मुरसलीन ने इरशाद फरमाया, जिसने रमजान में 10 दिन का इत्तिकाफ कर लिया तो ऐसा है जैसे 2 हज और उम्रे की है। इसी तरह हज़रत हसन बसरी से मरवी है कि इत्तिकाफ करने वाले को रोजाना 1 हज का सवाब मिलता है। तो इत्तिकाफ के बेशुमार फज़ाइल हैं। मर्द को चाहिए कि मस्जिद के अंदर बैठे और औरत को चाहिए कि वो घर के अंदर जगह बनाकर बैठे। और वाजिब और सुन्नत इत्तिकाफ के लिए रोजा रखना भी साथ शर्त है। नफली इत्तिकाफ के लिए कोई रोजा रखना शर्त नहीं है। नफली इत्तिकाफ तो आपका 1 मिनट का भी हो सकता है, चंद मिनट का हो सकता है, घंटों का हो सकता है, दिन का हो सकता है। जब भी मस्जिद के अंदर जाएं तो आप नफली इत्तिकाफ की नियत कर लें तो आपके लिए खाना पीना जायज हो जाएगा। इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर